دی ہو ادب دے کر ادب سکھا کر ان کی شادی کر لو۔ نبی فرماتے ہیں جنت میں ہمارے بغل میں ہوگا۔ اے مسلمانوں، جب دو والوں کے لیے اتنا بڑا مزدہ ہے تو تین کا عالم کیا ہوگا، چار کا عالم کیا ہوگا، پانچ کا عالم کیا ہوگا۔ ارے یہ تو بیٹی اور بیٹے والے ہیں، میرے نبی تو ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، یہ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے، انتقال کیا، مگر آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لاولد ہوں گے، ان کے بارے میں میرے نبی فرما دیجئے۔ تب میرے پیغمبر نے فرمایا تھا عائشہ جس کا دنیا میں کوئی نہ ہوگا اس کا سہارا میں بنوں گا۔ نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی مجھ سے نظارہ مل گیا، ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر مسلمانوں کے دل میں جذبہ ایمان پیدا کر، مسلمان بے عمل جو ہو گئے ہیں اپنے قرآن سے، الہی ان کے دل میں الفت قرآن پیدا کر۔ خداوندہ مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر۔ بجے چاروں طرف اسلام کا ڈنکا زمانے میں، علی شیر خدا سا پھر کوئی مردان پیدا کر۔ مقامات مقدس پر حکومت ہو مسلمہ کی، صلاح الدین غازی سا کوئی سلطان پیدا کر۔ دعائیں کرتے ہیں تجھ سے تیرے نبی کے غلام، سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر۔ چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا، میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے کونین کے فرما روا، دونوں عالم کے تاجدار، سارے نبیوں کے مالک و مختار، عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کچھ اور ہو نہ ہو، اتنا ضرور ہوتا ہے درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہو، اور یہ علاقہ حضور محبوب الاولیاء اور شعیب الاولیاء کا ہے، جن کے قدم ناز کی برکتوں سے اس علاقے کی سنیت کی کھیتی ہری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بڑے درباروں کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور حضور خطیب البراہین علیہ رحمت و رضوان کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ اس مجلس محبت میں ہندوستان کی مشہور شخصیت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، سرمایہ اہل سنت، وارث جبہ مولائے کائنات
حضرت علامہ سید گلزار احمد صاحب قبلہ مدہ ظلہ النورانی جو مسولی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور خصوصی خطاب مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر صاحب قبلہ علیمی مدہ ظلہ النورانی کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ بس زیادہ دیر میں قطعی آپ کا لینا نہیں چاہوں گا، چند منٹ کے لیے سراج چشتی حاضر خدمت ہوا ہے، آپ لوگ محبت سے سنتے رہیے۔ اس کانفرنس کو تعلیمی بیداری کا نام دیا گیا ہے۔ علم گرداب میں اترے تو سفینہ بن جائے، علم صحرا میں جو اترے تو مدینہ بن جائے۔ گلزار میاں مدہ ظلہ النورانی وہ ذات ہے جن کا تعلق، جن کا آدھا قبیلہ مدینہ طیبہ میں رہتا ہے، جنہیں آدھے قبیلے کے لوگ مدینہ طیبہ کے ایک جوار رحمت میں رہا کرتے ہیں، اور آدھے لوگ ہندوستان میں تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے، جہاں سے تعلق مارارا شریف کا بھی ہے، بیلگرام شریف کا بھی ہے، مسولی شریف کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے رخ زیبا کی زیارت عبادت سے کم نہیں ہے۔ بات آ گئی ہے مدینہ طیبہ کی، تو تھوڑی دیر کے لیے مدینہ کی عظمت پر گفتگو کر کے میں اپنے وقت کے اندر کچھ باتیں عرض کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ وہ مدینہ جو عشق کی راجدھانی ہے، وہ مدینہ طیبہ جہاں کی فضاؤں میں شفا ہے، وہ مدینہ طیبہ جہاں کی مٹی میں شفا ہے، وہ مدینہ طیبہ جہاں کی ہواؤں میں شفا ہے۔ شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مدینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ دہلی کی سرزمین کا واقعہ ہے، شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خود بیان ہے۔ ان کے دروازے کے سامنے ایک کبوتر کا جوڑا رہا کرتا تھا۔ حضرات، کبوتر کا جوڑا امن و شانتی کی زندگی گزارنے والا تھا، مگر کچھ دنوں کے بعد آپ کا بیان ہے، میں نے دیکھا نر کبوتر کے آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، تو کبوتری بھی حیران رہنے لگی۔ دوسرے پرندوں نے اس کے غذا کا اہتمام کیا، کبوتری اپنے گھونسلے سے اڑی۔ تقریباً 6 دن گزرنے کے بعد جب وہ دہلی وارد ہوتی ہے تو اس کے چونچ میں لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا۔ شیخ صاحب کا بیان ہے، میں یہ منظر بیٹھ کر کے اپنے حجرے سے دیکھ رہا تھا، لکڑی کا ٹکڑا لا کر اس کی اندھی آنکھوں میں لگا دیا، لکڑی کا ٹکڑا مس ہونا ہی تھا، اللہ نے اس کے آنکھوں کو نور کر دیا، اللہ نے اس کی بینائی کو واپس کر دیا، پرندہ خوش ہو گیا۔ شیخ صاحب نے سمجھا کہ لکڑی برکت والی لکڑی ہے، رحمت والی لکڑی ہے، ایک چھوٹا سا جال ڈال کر اس کبوتری کو پھنسا لیا اور اس کے چونچ سے وہ لکڑی کا ٹکڑا لے لیا، تبرک کے طور پر اپنے امامے میں رکھ لیا۔ ان کے مریدوں کا بیان ہے، اسی دن اس گلی سے ایک جنازہ نکلا، جس جنازے میں شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شریک ہوئے، اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک فرماتے ہیں کہ دیکھو سفید بلی نے کالی بلی پہ حملہ کر دیا، دیکھو کالی بلی کو زخمی کر دیا، مریدوں کو تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، مگر شیخ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، شیخ کی آنکھیں ملاحظہ کر رہی ہیں۔ جب پلٹ کر اپنے حجرے میں آئے تو ایک مرید قریب آیا، کہا حضور آج آپ کیسی بہکی باتیں کر رہے تھے، ہم لوگوں کی سمجھ سے بالا تر تھا، حضور ہم نے نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا کہا؟ آپ کے مریدوں نے کہا حضور آپ فرما رہے تھے کہ سفید بلی نے کالی بلی پہ حملہ کر دیا، وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ پھر آپ کو خیال آیا کہ میں نے امامے میں ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھ لیا ہے، کہیں اس کی برکت کا تو یہ تماشا نہیں ہے۔ فوراً آپ
मुराकबे में बैठ जाते हैं। मुराकबे में बैठने के बाद उन्हें गैब से जो खबर दी जाती है, खबर ये दी जाती है, ऐ वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये लकड़ी आम लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी मदीना तैयबा में गुंबद खजरा के जवारे रहमत की लकड़ी है। पता क्या चला, जब लकड़ी का ये आलम है तो उस इलाके का आलम क्या होगा। जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। तैयबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डॉक्टर साहब आवाज कब के लिए बचा के रखे हो, सुबह लगाओगे, आगे बढ़ाओगे क्या? अभी डीजे में हो तो पूरा इलाका हिल जाएगा, मगर मौलवी के जुमलों पर तुम लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का है। सुन्नी मुसलमानों, वो अबकरी शख्सियत जिन्हें सरकार गुलजारे मिल्लत कहा जाता है, उसी मदीनतुर रसूल के रहने वाले हैं। उनका घराना वही का है। आज आप उनके रुखे ज़ेबा की जियारत करेंगे। हम मुबारकबाद पेश करते हैं इन लोगों को जिन लोगों ने हजरत को मदऊ किया है। अभी इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर या कुछ 1 घंटे के बाद उनके रुखे ज़ेबा की जियारत हम करेंगे, शरफ हम हासिल करेंगे। यहाँ से कोई उठ करके बाहर ना जाएगा, वरना याद कर लो वो महीनों तक पछताएगा। तो मैं जिक्र ये कर रहा था, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, तालीमी बेदारी का दौर चला है। हजरात, अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कारिये कुरान बनाओ, अपने बच्चों को तालिये कुरान बनाओ हजरात, ताकि ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बन जाए। अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाओ ताकि कल क़यामत के दिन ये बच्चे तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बन जाए। आलिमे रब्बानी बनाओ। हो सकता है तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा आलिम पैदा हो जाए जो कब्रिस्तान के किनारे से गुजरे तो 40 दिन तक वहाँ के मुर्दों से अज़ाबे कब्र को उठा लिया जाए। अपने बच्चों को तालिबे इल्म बनाओ, इनके कदमों के नीचे रहमत के फरिश्ते पर बिछाया करते हैं। इन मौलवियों को हल्का मत लिया करो। आज माहौल ऐसा बिगड़ रहा है, तकरीर करने के बाद या सुनने के बाद जब चाय खानों पे पहुंचेंगे तो कुछ बुकरात बैठ करके कहेंगे तकरीर जमी नहीं। ऐ जाहिलो, यहाँ तकरीर जमाने के लिए मत आओ, अपना सोया हुआ नसीबा बनाने के लिए आओ। दरबारे इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, एक आले रसूल की आमद है जिनके बारे में खुद मेरे पैगंबर ने फरमाया है, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। है इल्म दीन हासिल करने का जज्बा रखने वालों, आज देखा ये जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक दौर है, आज इल्म गूगल से सीखा जा रहा है। मुसलमानों, कभी गूगल से इल्म दीन न सीखना, इल्म दीन सीखना तो आलिम रब्बानी के यहाँ आना, हाफिज कुरान के यहाँ आना, तालिये कुरान के यहाँ आना। इसलिए कि ऐ लोगों, गूगल में तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और जब तुम आलिम की खिदमत में आओगे तो तुम्हें कुरान का दर्स देगा। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हसी देखा लाखों में हजारों में। मसल के आला हजरत का नारा लगाने वालों, अब जरा मजमे से कोई मतीनुल औलिया का दीवाना उठे और एक मर्तबा ऐसा नारा लगाए कि ऐवाने बातिल में ज़ल्ज़ला पैदा हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
माशाअल्लाह विद्यापुर के मुसलमान जिंदाबाद, विद्यापुर के निजामी बिरादरान जिंदाबाद, जो बहुत खर्चा किया है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों के सदके में मसल के आला हजरत का सबको सिपाही बनाए। ऐ लोगों, जियो तो मसल के आला हजरत पर जियो, मरो तो मसल के आला हजरत पर मरो। हुजूर मतीनुल औलिया फरमाया करते थे, मौलाना जिंदगी गुजारना तो मसल के आला हजरत पर ही गुजारना। हजरत हम मसल के आला हजरत के सच्चे सिपाही हैं। जिएंगे तो वफादार रसूल बन करके जिएंगे, मरेंगे तो वफादार रसूल बन करके मरेंगे। ये उलमा मैं तेरी बज़्म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। आज इनके रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए। 20 मिनट का टाइम मिला है, तकरीबन 6 मिनट खत्म हो चुका है। मैं कतई मुसल्लत होने वाला नहीं, इसलिए हमारे बाद एक से एक लालो कोहर है। मैं किसका नाम लो। हजरात, ये इस्लाम के सिपाही है, मसल के आला हजरत के तर्जमान है। आज हालात ये है, मदरसों को खत्म किया जा रहा है। अगर मदरसे खत्म हो गए तो फरंगियों का वो जुमला याद कर लो, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। लेकिन याद कर लो, जिसकी हिफाजत लोगों अजमेर में बैठा हुआ गरीब नवाज कर रहा है, ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर गरीब नवाज के हाथ में है। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, इसलिए मैं तो पूरे भारत में तमाम मकतबे फिक्र के मुल्लाओं को चैलेंज करके कहता हूँ कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें कलमा मिला है तो गरीब नवाज के चौखट से मिला है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, वफादार बन करके जियो, नबी के सच्चे शहदाई बन करके जियो और इल्म के अंदर बेदारी पैदा करो। आज नारा लगाया जा रहा है, ऐ मुसलमानों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेशक ये नारा बहुत अच्छा नारा है, मगर ये नारा, ये जुमला 1450 साल पहले पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो और दोनों बेटियों को अदब सिखाकर उसकी शादी कर दे, नबी फरमाते हैं उसके जन्नत की सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ, जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ। मैंने माना कुफ्र की हुकूमत देर तक चलती है मगर जुल्म की हुकूमत देर पा नहीं होती है। मैंने माना इस्लाम को थोड़ी देर के लिए दबाया तो जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता है। इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा 4 यार का। हजरात आओ, बस इसी तालीमी बेदारी के इस मौजू को लेते हुए मैं चंद मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ऐ मुसलमानों, मेरे पैगंबर ने फरमाया था, अल्लाह ने जिसे 2 बेटी दी हो और दोनों को अदब सिखा दे, दीन इस्लाम सिखा दे, नबी रहमत फरमाते हैं उनकी शादी कर दे। आका फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली में के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। और हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, ये हिंदुस्तान की सरजमीन जिसके बारे में शायर का तखय्युल है, मीरे अरब को आई बूए वफा जहां से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। ऐ भारत के मुसलमानों, अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने वतन के सरहदों सीमा से मोहब्बत करो, अपने वतन के कानून से मोहब्बत करो। जब जरूरत पेश आए तो ऐ लोगों, ब्रिगेडियर उस्मान बनकर के जान की कुर्बानी दे दो। जब वतन को जरूरत पेश आए, वीर अब्दुल हमीद बनकर पाकिस्तान जैसे जालिम मुल्क के टैंकों को उड़ा दो। तुम जियो तो वफादार नबी बनकर के जियो, मरो तो हिंदुस्तान के वफादार बनो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है जहां सबसे पहले जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया तो जजीरे सरंदीप पर उतारा गया। वो कौन सी जमीन है? उसे भी हिंद कहा गया है, जिसे लंका की पहाड़ी कहा जाता है। सबसे पहले नमाज फज्र अगर किसी ने पढ़ी है भारत में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। सबसे पहले अगर नबी को वसीला बनाकर किसी ने दुआ किया है तो
हमारे जद्दे करीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया है। इसलिए मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, हिंद से वफा की खुशबू आ रही है। हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, हिंदुस्तान के वफादार मुसलमानों, आओ बस 10 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म कर देना चाहूंगा, ताकि बाहर निकल करके कोई बुकराती न करता हुआ नजर आए। आए हो तो वफादार बन करके आओ, और जा रहे हो तो वफादार बन करके नजर आओ। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, एक सहाबी गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं। मौलाना अब्दुल कादिर साहब शायर इस्लाम, फिर वही तकरीर में कर रहा हूं जिस पर आप कमेंट किया करते हैं। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। हमें पता है दोष कहां कहां देना है, हमें पता है इलाज कहां करना है, हमें पता है मिस्र करना है कि इलाज ओवर करना है। आओ ऐ मुसलमानों, गयूर मुसलमानों, तहसील हरैया के जिंदा दिल मुसलमानों, अब अपने इमाम अहमद रजा के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, आज़म हिंद के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक सहाबी है जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। अभी इस्लाम दामने करम में नहीं, इस्लाम के दामने करम में नहीं आए हैं। अल्लाह ने हजरत दहिया कल्बी को बहुत खूबसूरत बनाया था, बड़ा हसीन बनाया था। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने दुआ किया, या अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को मोमिने कामिल बना दे। मेरे नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, सुबह होती है हजरत दहिया कल्बी दौड़कर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह किस मजहब की बात आप करते हैं, किस खुदा की बात आप करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम बुत परस्ती छोड़कर खुदाए वाहिद की इबादत करो। मेरे पैगंबर ने उन्हें कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिए। ऐ मुसलमानों सुनो, फिर वो रो पड़े, आंखों से कुफ्र पिघल पिघल कर आंसुओं की शक्ल में गिर रहा था। रो पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने 2 गुनाह बहुत बड़े बड़े किए हैं, अगर इजाजत हो तो इसी मजमे मोहब्बत में दोनों गुनाह बयान कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी बयान करो, क्या बयान करना चाहते हो, अर्ज करो, क्या अर्ज करना चाहते हो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैंने अपने कबीले में एक कानून बनाया है, एक बिल पास किया है, और कानून वो ये है कि मेरे कबीले में 150 घर है, 150 घर के अंदर मैंने कानून बनाया है कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे या तो जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए या गला दबोच करके उसे मार दिया जाए। मुसलमानों, अरब के जाहिल लड़कियों को कत्ल क्यों किया करते थे? इसलिए कि वो जानते थे लड़की जवान होगी तो शादी करना पड़ेगा, दामाद बनाना पड़ेगा, दामाद के सामने सर झुकाना पड़ेगा। अरब का दस्तूर था, जिस कमरे में औरत को बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था, उस कमरे में पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की पैदा होती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था, अगर लड़का पैदा होता था तो माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। अरब के जाहिल तो इतने जाहिल थे कि गुनाह करके दीवारे काबा पे माजल्ला गुनाह लिख दिया करते थे। मगर या रसूल अल्लाह आप आए तो इनकलाब लेकर के आए, आप आए तो दस्तूर हयात लेकर के आए, आप आए तो दस्तूर जमाना लेकर के आए। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। हजरत दहिया कल्बी को देखते हैं, नबी ने दुआ कर दिया। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो अपना गुनाह बयान कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, जो हमारे दिलों की धड़कनों पे हुकूमत करने वाले पैगंबर हैं, मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए फरमाते हैं, दहिया कल्बी कहो क्या कहना चाहते हो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह हमने अपने कबीले में एक कानून बनाया है कि अगर लड़की पैदा
पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए या जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए। 1450 साल गुजर गए, आज भी मक्कतुल मुकर्रमा में लोखंड के ब्रिज के नीचे वो कब्रें आज भी मौजूद है जहाँ जिंदा लड़कियों को दफन किया गया है। हुज्जाजे किराम ने अपनी आंखों से देखा होगा, पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे। हजरत दहिया कल्बी बयान कर रहे हैं, दहिया कल्बी को अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी कि जब हजरत जिब्रील उतरते थे तो दहिया कल्बी की शक्ल में उतरा करते थे। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने कानून बनाया था और 150 घर हमारे कानून के नीचे जिंदगी गुजार रहा था। हमने अपने जमाने में 70 बच्चियों का कत्ल करवाया है, 70 बच्चियों को मैंने जिंदा कब्र में दफन करवाया है। क्या मेरा खुदा मेरे जुर्म को मुआफ करेगा? हजरत जिब्रील उतर पड़े, मेरे नबी को सलाम कहते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा आपको सलाम कहता है और खुशखबरी दे दीजिए दहिया कल्बी को कि इस्लाम लाने की खुशी में दहिया कल्बी के गुनाहों को बख्श दिया जा रहा है। दहिया कल्बी के खुशी के आंसू और गिर पड़े और सिसक सिसक कर रोने पड़े। मेरे नबी ने कहा, दहिया कल्बी अब क्यों रो रहे हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह और है जिसे सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे आका, मेरा जुर्म ये है कि मैं एक बहुत बड़ा ताजिर भी हूं और अपने कबीले का सरदार हूं। मेरे घर में माले तिजारत इकट्ठा हो चुका था, सौदा कच्चा था, अगर बैरून ममालिक की मंडी में ना ले जाता तो बहुत भारी नुकसान हो जाता। या रसूल अल्लाह, लेकिन उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर मुझे ये खबर न थी बेटा है कि बेटी है। इसलिए या रसूल अल्लाह, मैं जाने से पहले अपनी बीवी को बड़ी सख्ती से ताकीद किया था और कहा यह था, बड़ी सख्ती से ताकीद किया था कि अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना, लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल कर देना। ये कहकर मैं तो चला गया। या रसूल अल्लाह, तकरीबन 3.5 साल के बाद जब मैं वापस पलट करके आया तो दिल में ये अरमान लेकर के आया था, मेरे घर में हो सकता है बच्चा पैदा हुआ हो, मैं पहुंचूंगा, अपने बेटे को सीने से लगाऊंगा, लबो रुखसार को चूमूंगा, उसका नाम रखूंगा, उससे प्यार करूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं घर जब पहुंचा तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया, तब किसी ने दरवाजा खोला और कहा, दरवाजा खोला और कहा, कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह, जब दरवाजा खुला तो एक बच्ची मेरे नजरों के सामने से गुजरती है जिसका चेहरा हूबहू मेरे चेहरे से मिल रहा था। उसने जब यह सुना कि मेरा बाप आया है तो दौड़कर मेरे दोनों टांगों के बीच में अपना सर डाल देती है और नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लेती है और रो रो करके कहती है, मेरे बाबा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने सुना कि मेरी ही बेटी है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। दिल तो चाहा खूबसूरत बच्ची है, इसकी परवरिश कर लो, मगर या रसूल अल्लाह, कानून मैंने बनाया था, मेरा बनाया हुआ कानून मेरे रास्ते का पत्थर बन गया। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मैंने तो कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को तलाश रहा था। मेरी बीवी दीवार का सहारा लेकर के कांप रही थी। मैंने तड़प कर पूछा, मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, तूने लड़की को पाला है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने दहिया कल्बी की बीवी को हौसला दिया। उन्होंने जवाब दिया, दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत है ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है, हमने रहमत समझ करके पाल लिया है। या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला, सीने में इंतकाम की आग जल रही थी, मगर हालात नाजुक थे, मैंने कुछ नहीं बोला। तकरीबन 15 दिन गुजर जाने के बाद एक दिन मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा, मेरी बच्ची को गुस्ल करवा दे, अच्छे कपड़े पहना दे, मैं इसे जरा बाजार ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी बीवी खुश हो गई, दौड़कर मेरी बच्ची को गुस्ल करवाया, एक अच्छा सा कपड़ा पहनाया। मुहद्दिसीन लिखते हैं, एक नन्हा सा दुपट्टा बेटी के गले में डाल दिया, ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं के चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। दया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने गोद में बच्ची को उठा लिया, एक साइड में मैंने बच्ची को उठाया, फिर उस कमरे की तरफ अपने कदम को बढ़ाया। या रसूल अल्लाह, जहां पर कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कुदाल रखी हुई थी, कब्र खोदने का आला रखा हुआ था। या रसूल अल्लाह, जब मैं कमरे में जा रहा था, मेरी बीवी तड़प कर चीख मार कर कहने लगी, मेरे सरताज, इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं
बिगाड़ा है। कहते या रसूल अल्लाह मैं कुछ न माना, मैं कमरे में गया, कब्र खोदने का फावड़ा अपने कंधे पे लिया, जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरी बीवी तड़पती रही, बिलखती रही, सिसकती रही। साहिल के तमाशाई सभी डूबने वालों पर अफसोस तो करते हैं मगर आह नहीं करते। हजरात कहने का मतलब है, दया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं ले जाकर के उसके आगे जा रहा था, आगे आगे मैं बच्ची को लेकर के जा रहा था, मेरी बीवी पीछे तड़प रही थी मगर मैंने कुछ नहीं उसका ख्याल किया। या रसूल अल्लाह जब मैं घर से बाहर निकला तो या रसूल अल्लाह जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा, मेरी नन्ही सी बच्ची अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मेरे बालों में कंघा कर रही है और गुलाब जैसे पंखड़ी वाले होठों से या रसूल अल्लाह मेरे लबो रुखसार को चूम रही है, मुझसे मोहब्बत कर रही है और कहती है मेरे बाबा आप कितने अच्छे हो, मुझे बाजार लेकर के जा रहे हो। या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे तरस न आया, रहम न आया, मैं ले चल करके आगे बढ़ा। या रसूल अल्लाह जब मैं जंगल में गया, एक पेड़ के नीचे अपनी बच्ची को साये के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने कब्र का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह कब्र खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं कब्र खोद रहा था मेरे जिस्म पर गर्दो गुबार उड़ करके पड़ रहे थे। या रसूल अल्लाह वो मंजर जब मैं सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मेरी लड़नी सी बच्ची जब देखती है कि मेरी पेशानी से पसीना गिर रहा है तो दौड़कर मेरी बच्ची ने अपना दुपट्टा उठा लिया और मेरे पेशानी को पूछा और पसीने को पूछा और मेरे जिस्म पर जो गर्दो गुबार उड़ करके लगे थे या रसूल अल्लाह उसी दुपट्टे से गर्दो गुबार को झाड़ रही है मगर फिर भी मुझे रहम न आया। या रसूल अल्लाह जब कब्र का गड्ढा तैयार हो गया तब मैंने उठाकर अपनी बच्ची को कब्र के गड्ढे में डाल दिया। जैसे ही बाहर निकलना चाहती थी मैंने ठोकर मारकर फिर गिरा दिया। मेरी बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़कर मुझसे रहमो करम की फरियाद किया था, मेरे बाबा मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी बख्श दो, अगर मेरे चेहरे से आपको नफरत है तो मुझे बख्श दो, मैं पलट कर तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी मगर मेरी जान बख्श दो। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो वो मंजर कैसा होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मंजर को सुन रहे थे, रो रहे थे। मेरे नबी के इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे। ये देखिए शायर इस्लाम जनाब तुफैल शमसी साहब जौनपुर से तशरीफ लाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। हजरत दया कल्बी कह रहे या रसूल अल्लाह मंजर मैं नहीं भूल रहा था, मैंने अपनी बेटी को ठोकर मारकर कब्र में गिराया। हाथ जोड़कर उसने जिंदगी की भीख मांगी थी मगर फिर भी मुझे रहम न आया। या रसूल अल्लाह मैंने फावड़ा उठाया और कब्र का गड्ढा बराबर करने लगा, कब्र की मिट्टी को पालने लगा, कब्र की मिट्टी को बराबर करने लगा। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी जब कब्र के अंदर कंधे तक धंस जाती है तो उसने मेरी तरफ से अब उम्मीद छोड़ दिया। मौत का भयानक चेहरा उसके सामने था मगर मरने से पहले या रसूल अल्लाह मेरी बेटी ने जो दुआ किया था वो सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी ने फरमाया दया कल्बी तेरी बेटी ने क्या दुआ किया था? या रसूल अल्लाह कब्र में दफन होने से पहले मेरी बच्ची ने कहा था या अल्लाह वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मज़दा सुनाएगा। उसके बाद ये कहते कहते या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की आवाज खामोश हो जाती है, मेरी बेटी हमेशा के लिए दफन हो जाती है। मेरे नबी ने 2 मरतबा दया कल्बी से वाक़ये को सुना, इतना रोए कि नबी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। एक सहाबी जज्बाती हो गए, खड़े हो गए, दया कल्बी तुमने गलत किया जो मेरे पैगंबर को रुला दिया। उसी मकाम पर मेरे नबी ने फरमाया था खुदा ने जिसे 2 बेटियां दी हो अदब देकर अदब सिखाकर उनकी शादी कर लो। नबी फरमाते हैं जन्नत में हमारे बगल में होगा। ऐ मुसलमानों जब 2 वालों के लिए इतना बड़ा मुद्दा है तो 3 का आलम क्या होगा, 4
چار کا عالم کیا ہوگا، پانچ کا عالم کیا ہوگا؟ ارے یہ تو بیٹی اور بیٹے والے ہیں، میرے نبی تو ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، یہ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے، انتقال کیا، مگر آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لاولد ہوں گے، ان کے بارے میں میرے نبی فرما دیجئے۔ تب میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اے عائشہ، جس کا دنیا میں کوئی نہ ہوگا اس کا سہارا میں بنوں گا۔ نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ اے میرے عرب کو آئی بوئے وفا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہم اودھ کی سرزمین پہ رہتے ہیں۔ ہم دو ایسے غیور کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اسی سرزمین ہند پہ جب فرنگیوں نے حکومت کیا تھا، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے جب بھارت کو غلامی کی زنجیر پہنائی تھی، تو دو ایسے غیور نوجوان اٹھے تھے، ایک کا نام پنڈت رام پرساد بسمل تھا اور ایک کا نام شہید اشفاق اللہ خان تھا۔ ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کیا تو بغاوت کے جرم میں انہیں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ ایک کو فیض آباد کے جیل میں سزائے موت دی جا رہی تھی اور ایک کو گورکھپور کے چوک پر پھانسی کے پھندے پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ تب پنڈت رام پرساد بسمل نے بسمل عظیم آبادی کا شعر پڑھا تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اشفاق اللہ خان جب فیض آباد کی سرزمین پر سزائے موت پانے والا مجاہد کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو میری پیشانی سے مٹی سے ہندوستان لکھ دینا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے وطن سے محبت کرو، اس لیے کہ وطن سے محبت کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ان علماء کے صدقے میں مولا تعالی ہمارے والدین کریمین کی مغفرت فرمائے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ حضور گلزار ملت کے صدقے میں یا اللہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت آئندہ باد۔